आप सोच सकते हो कि हाँ, आप नहीं, अभी तो हम बोलते हैं हो जाता है, अनंत में उसकी कितनी वैल्यू। एक व्यक्ति जो फिर गया नाश होने से, आपकी गवाही के कारण बच गया, उसकी वैल्यू आप नहीं समझ सकते अभी, मगर अनंत में उसका रिवॉर्ड परमेश्वर। वो कहता है अगर तू एक गिलास पानी भी दे देगा मेरे नाम से तो तू अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। तो सोचो अगर आपने एक आत्मा नाश होने से बचा ली तो कितना बड़ा प्रतिफल आपका है। You cannot imagine the reward for one lost soul that is saved because of your testimony. He says even if you give one glass of water you will not lose your reward. Imagine the reward for saving souls. दिए तो आपने परमेश्वर की महिमा चुराई है। What is stealing? चोरी करना When क्या you होता है? take something what belongs to somebody else. चोरी करना वो है जब आप किसी और का जो है उसको आप ले लेते हो। Every healing should give a loud praise to Jesus. हर एक Every breakthrough, every act of God, you should scream aloud, my Jesus is alive. हर एक चंगाई, हर एक परमेश्वर के काम पर आपको जोर से चिल्लाना चाहिए कि मेरा यीशु जिंदा है। Amen. Okay, अभी आप सब बैठ जाइए, मैं आपसे दूसरे कितने लोग यहाँ पे हैं जिनकी एक पर्सनल टेस्टमनी प्रभु ने उनके जीवन में करी? अपना हाथ उठाओ। How many people here have received a personal testimony in their own life that God has done something for you? Lift your hand. जो हाथ नहीं उठा रहे, प्रभु ने कुछ नहीं किया आपके जीवन में? Those who have not lifted up hands, अब has उठा God रहे हैं, done nothing for you? Are you trying to tell me that God has done nothing? The people who are still not lifted, मैं जबरदस्ती फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको हाथ उठाने का। I'm not trying to force If you feel God has done nothing for you, अगर आपको लगता है good for परमेश्वर ने you. कुछ नहीं किया, अच्छा आपके लिए। I feel मेरे पास तो बिलियन रीजन, मेरे बिलियन हाथ होते तो मैं उठा देता। If I had a billion hands, I would have lifted them up. Okay, ठीक है, अब हाथ नीचे करो। अब इतने लोग हैं, Now among these people, सड़क छोड़ दो, forget सड़क the में मत जाओ, don't go to the road. अपने रिश्तेदारों के पास जाओ और उन्हें बताओ यीशु ने आपके लिए क्या किया। Go to your relatives and tell them what Jesus has done for you. अपने रिश्तेदारों को तो बता सकते हो, You can tell अपने your बेस्ट relatives, फ्रेंड्स को तो बता सकते tell हो। your best friends. अरे वो तो नहीं बोलेंगे आपको कि इसका एजेंडा मुझे कन्वर्ट करने का है। At least they will not say you have वो an तो agenda to जानते हैं convert me. आपको। They know you. उनके पास जाओ, उनके पास अपनी गवाही बताओ कि यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया है। Go to them and tell them what Jesus has done in my life. That's why you are a witness. इसीलिए तो आप गवाह हो। मत बताओ उन्हें 7 तुरियां जो भूखी जाएंगी अंत के समय में। अरे ये बताओ यीशु ने मेरे जीवन में क्या किया है। Don't tell them about the 7 trumpets that will be blown at the end times, but go and tell them what Jesus has done for me. क्योंकि वो आपको जानते हैं, वो जब आप गवाही बताओगे वो सुनेंगे, अच्छा सच में तेरे साथ ऐसा हुआ। Because they know you, so they will say, really, this happened to you? सच में? Really? बोलो आजा अगले संडे, Tell come them. and see, Tell them, come and see next time. come and see. आओ और Let देखो। me tell you, आपको बता दूं, आज दुनिया पड़ी है पैसे कमाने के पीछे। the world is running after earning जो money, बुद्धिमान है ना वो आत्मा कमा रहे हैं। but the wise are earning souls. Your money will be here. आपका पैसा यहीं रह जाएगा। पैसा नहीं लेके जा सकते, You cannot take your money मगर with you. जितनी आत्माएं कमाई हैं उनको लेकर जाओगे अपने साथ उस राज्य में। But all the souls you have earned, you will take them with you in that kingdom. अरे आज मैं देखता हूँ कितने लोग हैं, वो एमवे और क्या क्या है ये, हाँ क्या ओरिफ्ले क्या What is that? Some Korean company, Oriflame, yeah. Oriflame, I don't know what that is. Okay, it's also a brand. मैं देखता हूँ लोग उसके लिए इतने passionate हैं। People are so passionate for these multi-level marketing ये companies. member बन जाओ, ये member बन जाओ, ये कर दो, वो कर दो। Be a member. अब be क्या a member. मिलता है? Peanuts. And what do they get? Peanuts. Peanuts. आपको आइडिया नहीं है कैसे फेवर में चलोगे जब आत्माएं जीतने वाले बन जाओगे। You have no idea the kind of favor you will walk in when you will become a soul winner. आप सोचो, आपने टेस्टमनी दी, आपने गवाही दी और एक व्यक्ति प्रभु में आ गया, कितना बड़ा प्रतिफल। आप सोच सकते हो कि आपने क्या जीता है। Can you imagine you gave your testimony and somebody received the Lord because of your testimony? Can you even imagine what you've earned? अब सोचो इस बात को, ठीक है, ध्यान से। आपने एक बंदे को बताया, You told someone, वो प्रभु में आ गया,
he came to the world. उस बंदे को परमेश्वर ने उठाया और उसके द्वारा लाखों लोगों को जीत लिया। The Lord lifted that person and through him one अब जितने million उस people. बंदे ने जीते परमेश्वर में लोग, उससे और लोग परमेश्वर में आए। आप सोच सकते हो क्या होगा जब आप परमेश्वर के राज्य में जाओगे? लोग आके आपको झप्पियां लेते रहेंगे इधर से उधर से। आप बोलोगे भैया क्या हो गया? वो कहेगा आपकी वजह से मैं आज परमेश्वर के राज्य में हूँ, क्योंकि आपने अपनी गवाही बताई, इसीलिए मैं परमेश्वर के राज्य में हूँ। इसीलिए अपना मुंह बंद मत रखो, अपनी गवाही बांटो जो यीशु ने आपके लिए किया When है। you will enter the kingdom of God, people will come from all sides to hug you and thank you because of your testimony. I got into the kingdom of God. So don't be quiet, but share your story with everybody. Amen? एक मिनट बैठिए, मैं आपको फिर हम प्रार्थना करेंगे। कई लोग सोचते हैं ना जब मुझे बहुत बाइबल आ जाएगी, जब मुझे बहुत ज्ञान आ जाएगा तब मैं बताऊंगा। नहीं, उस ज्ञान में वो सामर्थ्य नहीं होगी जो एक जेन्युइन गवाही में होगी। Amen. Some people think when I will know a lot of Bible, then I will tell people. No, no, no. It's that knowledge will not have the power which a genuine testimony will carry. हाँ, क्रैश कोर्स पाना चाहते हो बाइबल कॉलेज? Do you want a crash course यीशु of एक Bible? सामरी स्त्री के पास गया। Jesus went to a Samaritan woman. ओके, सामरी स्त्री के पास, A Samaritan woman. कुएं में, At the कुएं के well. पास है। She was यीशु at ने the कहा well. पानी दे। Jesus said, "Give me water." यीशु ने कहा अगर तू जानती मैं कौन हूँ तो He तू said- मुझसे पानी मांगती। If you knew who I was, you would ask me for water. फिर आगे उसको बोला कि And then he तो says, 5 पति कर चुकी है, "You've had 5 husbands. जिसके साथ तू है वो तेरा पति नहीं The है। one you're with now is not even your husband." So she was not living a very perfect life. तो वो बहुत सिद्ध जिंदगी नहीं जी रही थी, But she recognized. लेकिन उसने उसने कहा पहचान मैं लिया. मसीह हूँ। She said, "I'm a." वो गांव भागी। He said, "I am the Christ." She ran into the village. कितना पता था उसे? How much did she know? मसीह है, He is the Christ. यीशु ही मसीह है। Jesus is the इज Christ. क्राइस्ट। यीशु ही जाके मसीह. पूरे गांव में बताने लगी और बाइबल कहती है पूरा गांव बच गया। She went into the whole village and told everybody Jesus is the Christ, and the Bible says the whole village और believed. क्या बता रही है? What is she telling ये them? नहीं बता रही आइसाया जर्मानी का, कह रही है उसने मेरे जीवन के बारे में बता दिया। भाई मेरे जीवन, यही तो असली गवाही है जो यीशु ने आपके जीवन में किया है। जब आप उसकी गवाही देते हो तो उसमें बहुत सामर्थ है। She's not going and telling them about the Bible. She's saying this is what Jesus did in my life. When you talk about your life, what God did in your life, that's where the power of God is. Amen? मैं आपको बता रहा हूं क्या होगा अगर आप सब एक चीज परमेश्वर के सामने हम एक अनुग्रह मांगते हैं कि 2026 में हम आत्माओं को जीतेंगे। We will ask God for His grace that in 2026 we will save souls, we will win souls. Because the souls are the heartbeat of God. क्योंकि वो प्राण परमेश्वर का हृदय हैं. आप सोच सकते हो कि हाँ, आप नहीं, अभी तो हम बोलते हैं हो जाता है, अनंत में उसकी कितनी वैल्यू। एक व्यक्ति जो फिर गया नाश होने से, आपकी गवाही के कारण बच गया, उसकी वैल्यू आप नहीं समझ सकते अभी, मगर अनंत में उसका रिवॉर्ड परमेश्वर। वो कहता है अगर तू एक गिलास पानी भी दे देगा मेरे नाम से तो तू अपना प्रतिफल नहीं खोएगा। तो सोचो अगर आपने एक आत्मा नाश होने से बचा ली तो कितना बड़ा प्रतिफल आपका है। You cannot imagine the reward for one lost soul that is saved because of your testimony. He says even if you give one glass of water you will not lose your reward. Imagine the reward for saving souls. और आज आप आपको याद होगा जब ऑल नाइट प्रेयर चल रही थी, प्रभु ने मुझे एक ज्ञान का वचन दिया कि एक लड़की है जिसकी शादी नहीं हुई, जिसकी ओवरी सर्जरी से निकाल दी गई। परमेश्वर एक नई ओवरी बना रहा है और परमेश्वर ने वो किया एक बेटी के जीवन में। In the all night prayer, God gave me a word of knowledge that there's a young girl who's not yet married and her ovary was removed surgically. God is putting a new ovary in श्वेता her के body. जीवन में प्रभु ने वो किया। अब सुनो, ये मैं आपको बता रहा हूँ गवाही की पावर क्या होती है। I'm telling you the power of testimony. अब उसने आके गवाही दी, जब उसने अल्ट्रासाउंड कराया और देखा एक नई ओवरी, उसने अपनी गवाही दी मेडिकल रिपोर्ट के साथ। So when she got the ultrasound done, she came and testified with the medical report that God created a new ovary मैंने for आपको her. क्या बताया? टेस्टमनी यानी गवाही का इब्रानी शब्द में मतलब क्या है? डू इट अगेन, परमेश्वर फिर से करो। Testimony in Hebrew means God do it again. अब मेरा सवाल ये आता है कितनी बार करो? So my question is, do it how many times? कितनी बार?
How many times? हाँ, कितनी बार? How many times? एक सेब का जो बीज है वो कितनी बार तक सेब बनाता जाएगा? The seed of an apple, how many apples will it produce? जो बगीचे में लगे थे वो आज भी खा रहे हैं हम फल तब से। The ones planted in the garden, we are still eating the fruit of them. अब सोचो इस बात को। Now think about this. कहाँ पे था मैं? ओवरी। ओके, ओवरी आ गई। एक और बहन है Now there's another जिसने sister. क्या सुनी है? What did क्या सुनी उसने? उसकी सेम सिचुएशन थी, she heard this testimony? सर्जरी से ओवरी निकाल दी गई She had the same situation. और वो ovary यहाँ removed. पर नहीं मौजूद थी जब ये वचन भविष्यवाणी का आया। And she was not even present here when this prophetic word came. मगर उसने क्या किया? Oh, what she did? उसने उस मैसेज से वो गवाही का पार्ट काट लिया, She took out that clip of that testimony from the अपने message. कान में लगाया She started to और hear, बार बार उस गवाही को सुनती and रही। she kept on hearing that testimony. क्या? She invoked the spirit of prophecy. उसने भविष्यवाणी की आत्मा को अपने जीवन में लागू कर दिया. सुनती रही, सुनती रही, She सुनती kept on रही। hearing, kept on विश्वास सुनने से आता है। Faith जब comes by सुनती hearing. रही, एक दिन उसके मन में आया, डॉक्टर के पास गई, अरे अल्ट्रासाउंड कराया, एक और नई ओवरीज बहन की भी आ गई। When she kept on hearing, faith came by hearing. She went for an ultrasound and got the confirmed report. God created a new ovary for her. अब अगर कोई और है वो कहे ऐसे दौड़ना होता है, Now there's someone who says it doesn't work like this. बिल्कुल सही बात है, Absolutely. आपके लिए बिल्कुल वैसा ही होगा। It will absolutely be like that for them. यीशु ने कहा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे साथ हो। Jesus said, let it be done to you as per your faith. फिर क्या हुआ? Then what happened? फिर चेतन है यहाँ पे, Chetan is चेतन ने here. वो गवाही सुनी। Chetan heard that testimony. अब उसने कहा अगर प्रभु ओवरी बना सकता है तो प्रभु मेरा गॉल ब्लैडर भी बना सकता है। And Chetan said, if God can create an ovary, God can also create my gallbladder. Why do you think this faith came in his heart? आपको क्यों लगता है कि ये विश्वास उसके मन में आया? Because he heard it and he saw an act of God. क्योंकि उसने सुना और उसने देखा परमेश्वर के काम को. उसने विश्वास किया, He believed. वो डॉक्टर के पास गया, He went to the वहाँ doctor. अल्ट्रासाउंड हुआ, एक नया गॉल ब्लैडर उसके अंदर। They did the ultrasound and there's a new gallbladder in his body. फिर उसकी गवाही एक बहन देख रही थी ऑनलाइन जिनका गॉल ब्लैडर निकला हुआ था। Then a sister- उन्होंने अपने फोन में गॉल ब्लैडर का एक वॉलपेपर लगाया, रात को 12 बजे से रोज घोषणा करने लगी, अगर परमेश्वर चेतन के जीवन में कर सकता है तो परमेश्वर मेरे जीवन में भी कर सकता है। फिर वो डॉक्टर के पास गई और एक ब्रांड न्यू गॉल ब्लैडर। Then another sister, when she saw Chetan's testimony, she was watching online and she said, if God can create a gallbladder for Chetan, then he can create a gallbladder for me. And then she went and got tested and there was a new gallbladder in her body. यही लोग नहीं समझते। This is what people don't टेस्टमनी का understand. टाइम आता है, अरे थोड़ा रोक लो अपनी भूख को। When the testimony time comes, We are stop doing your it for hunger. you. हम आप ही के लिए कर रहे हैं. वरना मैं जल्दी सर्विस करके पीछे चला जाऊंगा। I can close the service early and go back. Why are we doing this testimony? हम ये क्यों कर रहे हैं गवाही? For you. आपके लिए. Don't despise this time. इस समय को तुच्छ मत समझो. It's not an extra time in the service. ये सर्विस में फालतू का समय नहीं है. It's not a less important time. ये कम कीमती समय In नहीं है सभा fact, का. this is the time when the acts of God are being glorified. The spirit of prophecy is present to do it again. बल्कि ये तो वो समय है जहां परमेश्वर के कामों की महिमा हो रही है और भविष्यवाणी का आत्मा मौजूद है उसको दोबारा दोहराने के लिए. अरे आपको बोलना चाहिए मैं सूसू रोक के बैठ जाऊंगा मगर गवाही पूरी सुन के जाऊंगा। You should say, I will not go to the washroom, but I will hear the testimony completely first. Because you don't know when you went out, you have no idea what these people testified. क्योंकि जब आप बाहर गए आपको कोई अंदाजा नहीं है इन लोगों ने क्या गवाही दी उस समय. और शायद उनमें से एक व्यक्ति ने वो गवाही दी जिस जरूरत के साथ आप कलीसिया आए थे। And maybe one of them gave the testimony of the same need you came to the church with. The Bible says with all your getting, get understanding. बाइबल कहती है कुछ पाना ही है तो समझ को पालो.